Hello students, Jai Shri Swaminarayan. Now let's move forward. Exercise 14.4, question number 1. First of all, let this question. The following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. Okay, so we have the data for the 10 matches. 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3. Find mean, median and mode. Here we need to find mean, median and mode. Okay, so students, this is ungrouped data. Okay, this is the type of ungrouped data. So here we need to apply the formula for ungrouped data. Okay, so first of all, mean. मीन के लिए क्या फॉर्मूला है? मीन x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n. ओके, सिग्मा x means what? Addition of all the numbers. Sigma, it shows addition. Okay, sigma x, these are the value of x. Sigma, that means addition. So addition of all the value. So 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 0 plus 1 plus 3 plus 3 plus 4 plus 3 divided by n. यहाँ पे हमारा n कितना है? Okay, this is the data of 10 matches. So total 10 data we have. So directly we can write n is equal to 10. N means total number of observations. Okay, n means total number of observations. So it is given in the equation. This is the data of 10 matches. Otherwise we can also count it. Okay, यहाँ पे count करोगे कितने numbers हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 numbers है, so n is equal to 10. Okay, total number of observation, it is represented by n. So n is equal to 10. Okay, so now our sigma x, 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 0 plus 1 plus 3 plus 3 plus 4 plus 3 and divided by n, that is 10. Now find out the addition. So 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 plus 5 14 plus 1 15, 15 plus 3 18 plus 3 21 plus 4 25 plus 3 28 divided by 10. So 28 divided by 10, 2.8. Okay. So here our answer of median is 2.8 and these are the matches, right? Following number of goals were scored. So these are the goals of 2.8 goals. Okay, details किसके बारे में है? Goals. So unit भी हमें लिखना है goals. Okay. After that we need to find the median. Okay, for the median our first work is to arrange the data in ascending order. Okay, for finding out the median, our first work is to arrange the data in ascending order. So first of all, ascending order. Now यहाँ पे starting है 0, then है 1, then 2, अब 3 है 1, 2, 3, 4, 4 times 3, so 3, 3, 3 and 3. After that 2 times 4, 1 times 5. ओके, ये हमारा ascending order हो गया. यहाँ पे भी काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 डेटा सेट ऑरेंज हो गए. ओके, so this is the ascending order. Now here our n is equal to 10. So here we have n is equal to even number. ओके, so even number के लिए median का ungrouped data के लिए क्या फॉर्मूला? That we already learned in our theory part. Okay, so median n is equal to n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divided by 2. Now n by 2. So n, right now our value of n is 10. So 10 by 2th observation plus 10 by 2 plus 1th observation divided by 2. Okay, now 10 by 2 5,
10 by 2, so 5, so fifth observation plus 10 by 2, it is 5, so fifth observation plus 10 by 2, again 5 plus 1, sixth observation divided by 2. Okay, 10 by 2, that is fifth observation plus 10 by 2, 5 plus 1, sixth observation divided by 2. Okay, so now fifth observation, that means अब यहाँ पे काउंट करो कि फिफ्थ नंबर पे कौन है. 1 2 3 4 5, so फिफ्थ नंबर पे है 3. so हमें यहाँ पे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखना है 3 प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, so सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन वो भी 3 है divided by 2. now 3 plus 3, 6 divided by 2, our answer is 3, and here even we need to write the unit goals. Okay, so this is the answer of median. Again, first of all we need to arrange the data in ascending order. After that we need to check n. If n is even, so we need to use this formula, n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divided by 2. so n, that is 10, so 10 by 2 observation plus here and 10 by 2 plus 1, so 10 by 2 5 plus 6 observation divided by 2. so fifth observation यानी कि काउंट करो 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे है 3, 6 पे भी 3, so 3 plus 3 by 2, 6 by 2 3 goals. Okay, now we need to find the mode. अब यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है तो हम यहाँ पे मोड फाइंड कर देते हैं. so मोड के लिए आपको क्या करना है, एक तो आप x लिखो और फ्रीक्वेंसी f लिखो. x यानी कि ये सब नंबर्स, यहाँ पे टोटल कौन कौन से नंबर है. so यहाँ पे आप देखो तो 0 दिख रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है. ओके, सभी नहीं लिखने हैं, मतलब 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखने हैं. अभी हम काउंट कर रहे हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं. सो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. ओके, नाउ चेक करो कि 0 कितनी बार है, उनको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी. कितनी बार है वो होता है फ्रीक्वेंसी, जो हमने प्रीवियसली टेबल बनाए थे उस हिसाब से. जितनी बार होते हैं उतने डेली मार्क्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी आती है. सो 0 कितनी बार है, एक ही बार है, सो 1. 1 कितनी बार है, एक ही बार है, सो इनकी फ्रीक्वेंसी भी 1. 2 कितनी बार है, एक ही बार है, सो 1. 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, सो 4. 4 कितने टाइम है, 2 टाइम, सो 2. 5 कितने टाइम है, 1 टाइम, सो 1. इनका आप एक टेबल बना दो विद द यूज ऑफ पेंसिल एंड स्केल. Okay, now mode means what? Most occurring digit. Right? Mode means what? Most occurring digit. So यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 4, वो है 3 की. सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 3. So here our answer of mode is equals to 3 goals. ओके स्टूडेंट्स, मोड में क्या बेसिकली देखना होता है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो आंसर आता है मोड का. तो यहाँ पे मोड, मोस्ट अकरिंग डिजिट, वो है 3 गोल्स. ओके, 3 है, वो 4 टाइम है, सो मोड का आंसर 3. ओके, सो मिन के लिए क्या फॉर्मूला है, सिग्मा x डिवाइडेड बाय सबका एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. फिर मीडियन के लिए if we have n even, then we need to use this formula, so n by 2 fifth observation plus 6 divided by 2. तो अब चेक करो ascending order में कि फिफ्थ ऑर्डर पे और सिक्स्थ ऑर्डर पे कौन है, उनको हम डिवाइड करेंगे by 2. ओके, और मोड के लिए सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है वो. ओके, नाउ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. Here in a maths test given to students, the following marks out of 100 are recorded. Okay, in a maths test given to student, the following marks out of 100 are recorded: 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52 and 60. Okay, now here find the mean, median and mode of this data. Okay, so students, here even we need to find
मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, सो यहां पे स्टूडेंट्स देखो, मीन के लिए हमें क्या करना है, सबका एडिशन चाहिए। मीडियन के लिए क्या करना है, एसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो सबसे पहले हम एसेंडिंग ऑर्डर ही लिख देते हैं। ओके, सो सबसे पहले आप लिख दो एसेंडिंग ऑर्डर, ताकि दो काम साथ में हो जाएंगे, एक तो एडिशन और एसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो एसेंडिंग ऑर्डर क्या है, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आप देखो तो वो है 40, जो 2 टाइम दिख रहा है। आफ्टर दैट 41, ओके 39 भी है, सो 39, then 40, 40, 41, then 42, then 46, 46, 48, after that 52, जो 3 टाइम है, and 54, after that 60, 62, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, so here our n is equals to 15। ओके, टोटल कितने नंबर्स है, 15 नंबर्स है यहाँ पे, so n is equals to 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब चेक करो इनमें से यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आ गए, तो अभी 2 बाकी है। ओके, सो 96 एंड 98, सो ये हो गया हमारा एसेंडिंग ऑर्डर। ओके, एसेंडिंग ऑर्डर अभी हमने वर्टिकली लिखा है, सो सबसे पहले 39, 40, 40, 41, 42, 46, 48, 52, 52, 52, 40, 54, 60, 62, 96, 98। तो 2 काम हमें साथ में करने हैं। अब हम यहाँ से इनका एडिशन भी लिख देंगे और एसेंडिंग ऑर्डर भी आ गए, तो सीधा ही हमें मीडियन मिल जाएगा, और एडिशन करोगे तो वहां से हम मीन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं कि 2 काम कैसे होंगे। तो हमें यहाँ पे चाहिए एडिशन, तो यहां से हमें मिल जाएगा सिग्मा x, इन सबका एडिशन कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे एडिशन 9 + 1 10 + 2 12, 12 + 6 18 + 8 26 + 2 28 + 2 30 + 2 32 + 4 36 + 2 38 + 6 44 + 8 52। Now remainder 5. So 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20 + 4 24 + 4 28 + 4 32 + 10 42 + 5 47 52। Now 52 + 12 64, 64 + 18 82, so 822। okay, so now mean x bar is equals to sigma x divided by n, because here even we have the ungrouped data, this is called ungrouped data। यहाँ पे कोई भी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ना ही कंटिन्यूअस है ना ही डिसकंटिन्यूअस है, कोई भी नहीं है। तो मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, x bar is equals to sigma x divided by n। सिग्मा x यानी कि इन सबका एडिशन, और 822 डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और हमने पहले ही काउंट कर लिए थे, कितने हैं टोटल 15। सो 822 डिवाइडेड बाय 15। ओके, सो यहां पे कैलकुलेशन कर लो। सो 15 5 is 75, ओके, रिमाइंडर 7 72, सो 15 4 is 60, remainder 12, it becomes 120, so here we need to apply decimal point। 15 6 sorry 8 120, so 54.8 ये आंसर आएगा मेन का।
और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा यूनिट क्या रहेगा, तो डिटेल्स में चेक करो ये क्या है कि मार्क्स है। मैथ्स की टेस्ट में कितने मार्क्स आए हो, सो 54.8 मार्क्स। ओके, ये आएगा हमारा मीन का आंसर। सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा एक्स यानी कि इन सबका एडिशन डिवाइडेड बाय एन, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 54.8 मार्क्स। नाउ मीडियन। ओके, नाउ हाउ वी कैन फाइंड द मीडियन? सो हियर n is equals to 50, that means here we have n as an odd number. Okay, so odd हो n, तो अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या है? So median m is equal to n plus 1 by truth observation. Okay, अनग्रुप डेटा में दो फॉर्मूला है मीडियन के, इवन और ऑड के लिए अलग अलग है। इवन के लिए a है, ऑड के लिए ये वाला है। ओके, सो यहाँ पे ऑड है, सो a यूज करते हैं। यहाँ पे n वैल्यू कितनी है इनकी 15, सो 15 plus 1 by truth observation. So 15 plus 1 16 divided by 2 8, so 8th observation. 15 plus 1 16 divided by 2 8th observation. ओके, अब 8th ऑब्जर्वेशन हमें चेक करना है, काउंट करना है कि 8th पोजीशन पे कौन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे है 52, सो आवर आंसर इज 52 मार्क्स। ये आएगा मीडियन। ओके, n plus 1 by 2th observation, n की वैल्यू पुट करो, 8 आया, सो काउंट करो कि 8th नंबर पे कौन है। 8th नंबर पे 52 है, सो 52, दैट इज आवर आंसर। ओके, भूल से भी गलती से भी यहाँ पे मत काउंट करना, एसेंडिंग ऑर्डर हो वहां पे ही हमें काउंट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ पे हमें एडिशन चाहिए, यहाँ पे एसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो हमने दोनों ही साथ में कर दिया, एसेंडिंग ऑर्डर भी लिख दिया और यहीं पे एडिशन कर दिया। तो मीन में भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, मीडियन में भी। ओके, अब जो बाकी बचा वो है मॉड। ओके, मॉड के लिए क्या करेंगे, x लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी f लिखेंगे। x, तो कौन कौन से नंबर है यहां से हमें पता चल जाएगा। 39 एक ही टाइम है, 40 जो 2 टाइम है, 41 एक ही बार है, 42 वो भी एक ही बार है, 46 वो भी एक ही बार है, 48 भी 1 टाइम है, 52 वो 3 टाइम है, 52 वो 3 टाइम है, 54 1 टाइम, 60 वो भी 1 टाइम, 62 वो भी एक ही बार है। ओके, 96 और 98 वो भी एक ही बार है। तो ये हुआ हमारा x और f के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ मॉड के लिए क्या फॉर्मूला है, मॉड mo is equals to most occurring digit, that means जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वैसा ऑब्जर्वेशन। सो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप देखो तो 3 फ्रीक्वेंसी है 52 की, सो हमारा आंसर आएगा 52 मार्क्स। क्योंकि आप यहां पे भी देखो अनग्रुप डेटा में 52 है, वो 3 टाइम आ रहा है, राइट। 52 कितनी बार है, 3 टाइम है, और कोई भी 3 टाइम नहीं है। तो हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा टाइम कौन रिपीट हो रहा है, 52 हो रहा है, सो और मोड का आंसर 52। मतलब मोड के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली मोड का आंसर लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो। ये तो हमने यहां पे ऐसा लिखा, डायरेक्ट आप काउंट करो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 52 सबसे ज्यादा बार है, सो 52 मोस्ट अकरिंग डिजिट 52 मार्क्स। ओके, सो सबसे पहले हमने एसेंडिंग ऑर्डर लिखा, यहां पे एडिशन फाइंड कर दिया। ओके, सो मीन क्या है, सिग्मा एक्स बाय एन, सो ये एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15, आंसर इज 54.8 मार्क्स। नाउ मीडियन के लिए n है ऑड, सो ऑड वाला फॉर्मूला, सो 8th ऑब्जर्वेशन वहां पे है 52। मोड के लिए चेक किया कि कौन कितनी बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है 52, सो 52। Okay, so students, now if you have any doubt in these questions, please write down in comment section. We'll give you the answer. Thank you.